एक्चुअली सपने बड़े देखने चाहिए, मतलब एक कहावत है हिंदी में कि मंसूबों में कंगाली कैसी। आपने रेडियो में भी ट्राई किया था ना? फिर क्या हुआ? उसने निकाल दिया क्या पहली बार में? बचपन में मैंने एक फिल्म की थी, इट्स कॉल्ड माय नेम इज खान। तो आई न्यू स्टार नहीं सर, एक्टर शाहरुख। यार तुम शाहरुख सर के साथ काम करते हो, मैं नहीं कर पाया 20 साल में कभी, तूने कर लिया तो बाकी बहुत कर रहा है। हाय परी हूँ मैं and you're watching us on Radio Nasha. वाह क्या शुरुआत है। Ring the bell. Yes. Welcome to Radio Nasha. Congratulations for Slum Golf. I'm so happy that finally there is something being made on this sport. जो I think mainstream में uncovered रहा है. हुई ही नहीं है बात. But उससे पहले I'm going to begin by asking you. We lost वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम, वो कैसा? आई हैव तो नॉट रिकवर्ड फ्रॉम दैट अभी तक। अंडरस्टैंड, आई वाज इन द स्टेडियम। ओह नो, you can see for last 2 days I was shut in my house. I didn't go out. In fact, I had a lot of things to do, but I just refused to do all that. I was in that sad zone. I think I was not on social media also. I was not doing anything. I was just lying down and sulking, I think. But I must tell you, I am so proud of this Indian team. Team India, you are the best. You are the winners. कोई बात नहीं, किस्मत एक बार साथ में नहीं देगी, अगली बार जरूर साथ देगी, और बहुत क्रिकेट है अभी. So and I love Rohit, the way he was leading the team. मतलब ऐसे अच्छे कैप्टन्स बहुत कम मिलते हैं. Obviously, in past we had Kapil sir, Ganguly sir, Dhoni. And after Dhoni, people were saying that there will be no such captain. But I think Rohit, you're wonderful. You proved yourself that you're a true cricketer. Yeah. And मुझे इस बार ऐसा obviously दुख तो हुआ ही, पर मुझे ऐसा लग रहा था that just one day cannot take away. Yeah, correct. क्या performance I'll tell you, tournament में. So I play a lot of cricket, and I've been playing that. You know, that one day doesn't decide that you are a good cricketer or a bad cricketer. It's a bad day, and that bad day can come to anybody's life anytime. Correct. So you should not be, sad by that or disappointed by that. I think you have that in you, and you can prove it again. So I think I think I can say this on behalf of the whole India. I think Team India, we are very, very proud of you. And I think to lift our spirits, एकदम correct time पर आ चुका है Slum Golf on Amazon Mini TV. Yep. I mean, I've always seen golf as a very rich people's sport. Is that right? है ना? मुझे भी लगा ऐसा ही है. I mean, it's considered an elitist sport, Yeah. but that is what we are trying to show through the show. कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम करो. You can do it. It's a very aspirational show. That's what we're trying to show to people. And Slum Golf, जो basically it's a version of golf the caddies made in the slums, because to an extent they are not allowed or they cannot afford to play on the course. And we are a nation of जुगाड़. This is my belief. तो हमें अगर कुछ करना है, हमें कहीं खेलना है, हम करेंगे. तो जैसे गलियों में हम क्रिकेट खेलते हैं, गलियों में फुटबॉल खेलते हैं, अभी गलियों में गोल्फ खेलेंगे. So it's very nice to show that. Right. And आप प्ले कर रहे हो the rich guy ना? हाँ जी. Just in the show. टपक रहे चेहरे से क्या मतलब ऐसे? नहीं सर, क्या पता सर. Richness टपकती है. नहीं सर, वो पता नहीं, but in the show तो बाकी का पता नहीं, but but Bajpai is also like a very heavy name, rich title also. हाँ जी, गौरव बाजपेयी. सरनेम में गौरव बाजपेयी नाम में थोड़ा दम है, but रईसी झलक रही है वहाँ से. और आप कोच हो इसमें. बट आपने पर्सनली गोल्फ खेला कभी? यार मैंने एक बार कोशिश की थी. मैं गोवा गया था, तो एक रिजॉर्ट में वहाँ गोल्फ कोर्स था, छोटा था. तो जैसे ही मैंने फर्स्ट शॉट लिया, ड्राइव मारने की कोशिश की, वो इंस्ट्रक्टर तुरंत आ गया, भाई साहब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आप गोल्फ खेल रहे हैं. सो तभी अकल आ गई कि नहीं, गोल्फ अलग है. बट आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ गोल्फ ऑन माय, वो पहले क्या था सोनी का PSP. हाँ, PSP बहुत गोल्फ खेला, तो मुझे टर्मिनोलॉजी पता थी काफी सारी. बट आई अंडरस्टूड व्हेन आई इंटरेक्टेड विद द कोच हु ट्रेन्ड अस फॉर द शो. A lot of things can be used from golf to cricket and cricket to golf. At least physically, जितना भी आपका action है वो काफी similar है. There are slight differences which if you correct it and you can play both the sports. So that's why if you see a lot of ex-cricketers, they play golf. Kapil sir plays, Sachin sir plays, Dhoni, he has played, Yuvraj Singh, they all play golf. Because it's the body language and the whole thing is quite similar to cricket. क्या नया सीखा गोल्फ के बारे में after? ये तो खेलते आ रहे हैं सालों से. Actually, I'm from a golfing family, so I've been playing golf all my life.
ये भी मैंने पहली बार सुना है, गोल्फिंग फैमिली। गोल्फिंग फैमिली मतलब मेरे दादाजी खेलते थे, तो दादाजी के वजह से पापा खेलने लगे, अभी पापा के वजह से मैं खेलने लगा। So, but nothing professional, nothing serious, just for the fun of it. It's a brilliant sport that we all enjoy. But it's quite addictive, what I heard. Yes. It's quite addictive. हमारे shoot पे तो like I'll tell you when correct when we were shooting ना, क्या होता था कि शॉट लग रहा है एक जगह पे भी, है ना, हम लोग है ना वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ एक पट है वहाँ पर, होल है तो हम पट कर रहे हैं वहाँ पर। अब वहाँ से बुलावा आ रहा है कि चलो चलो, मैंने लास्ट पट करके चलते हैं। So it's so addictive, it gets onto you कि you can't leave the sport like midway. You have to finish that hole and then you can move on. So बहुत इंटरेस्टिंग है, वो लोग जब खेलेंगे ना तब मजा आएगा। जैसे आपको याद है हम लोग जब बचपन में अपने घर में हॉल में डाइनिंग टेबल पे ऐसे बीच में एक फट्टा लगा के फिर टीटी खेलते थे, करेक्ट वैसे ही है। यू कैन मॉडिफाइड, यू कैन प्ले इन योर ओन गली मोहल्ले में खेल सकते हो आप। स्टार्ट विद दैट एंड देन यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट एंड देन यू कैन गो टू अ गोल्फ कोर्स एंड प्ले। Yeah, I don't think many people know. Firstly, obviously, it's inspired from true story. मैंने इसके बारे में पढ़ा भी था that मुंबई की गलियों में, and I was very fascinated, like wow, and what an inspirational story, right? मुंबई को obviously सपनों का शहर कहा जाता है, city of dreams. Personally, आप दोनों को मुंबई ने क्या दिया है? मैं यहाँ बैठा हूँ आपके रेडियो स्टेशन में, एक ग्वालियर के छोटे से मोहल्ले का लड़का अगर आज यहाँ एक बड़े रेडियो स्टेशन पे आके बैठ के इंटरव्यू दे रहा है तो मतलब बहुत कुछ दिया है मुंबई ने। Likewise, I mean, no one in my family दूर तक is from this industry. I dared to dream, you can say, and today my show has come out. So for me, it's a very big thing. बहुत ही बड़ी बात है। So I think Mumbai just allows you to dream, and also your dreams are within your reach. Gives you that opportunity. बहुत कुछ दिया है मुंबई ने। कोई सपना यहाँ बड़ा नहीं लगता है। हाँ, मतलब एक्चुअली सपने बड़े देखने चाहिए। मतलब एक कहावत है हिंदी में कि मंसूबों में कंगाली कैसी। इफ यू आर ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, ड्रीम बिग। तो अगर और उसके बाद अगर इतना एफर्ट मारोगे उसके से आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो आई विल टेल यू छोटी सी कहानी है। आई यूज्ड टू स्टे इन बांद्रा वेस्ट इन अ रेंटेड अपार्टमेंट विद 12 more guys in that. Oh, I know that phase. And you all know कि हम तो टाइम पास कहाँ जाते हो, बैंड स्टैंड पे जाते हो, you know तब बरिस्ता की औकात तो थी नहीं हमारी कहीं जाके पिए कैफे कॉफी डे में। तो सड़क पे वो 3 रुपए की कॉफी मिलती थी उस टाइम पे। So we used to see, and वहाँ एक बड़ी सी टॉल बिल्डिंग है जस्ट ऑन द बैंड स्टैंड, शायद देखी होगी आप सबने, वो जहाँ बरिस्ता और सब थे वहाँ पर, एक जीवेश टावर नाम की बिल्डिंग है। तो मैं देख के ऐसा बोलता था कि यार साला यहाँ है ना बैंड स्टैंड की इस बिल्डिंग का ना पेंट हाउस खरीदूंगा मैं एक दिन, देखना। तो ऐसा मैं बोलता था बहुत, एंड आई वाज वेरी वोकल अबाउट इट। तो चलो जितनी मैंने मेहनत की शायद कम पड़ गई, बट स्टिल आई बॉट अ पेंट हाउस। मतलब कहने का मतलब ये कि आप सोचेंगे अगर और उसको बोलेंगे तो आप मैनिफेस्ट करेंगे लाइफ में, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मुंबई कि वो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट होता है यहाँ। जी जी। अच्छा, इस शो में एक और चीज है दैट हाउ ऑब्वियसली पहले ऐसा था कि स्पोर्ट्स के लिए इतना एनकरेज नहीं किया जाता था बच्चों को, बिकॉज स्टेबिलिटी नहीं होती है, राइट? जब तक आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आपके मंथली एंड ऑफ द मंथ सैलरी आ रही है, तब तक फैमिली खुश है, पेरेंट्स खुश है कि हाँ। इसमें भी वही दिखाया गया कि कुछ और कर ले, उसके बाद ये भी कहा गया कि फुटबॉल क्रिकेट वगैरह नहीं चलेगा, गोल्फ ही खेलना है। एंड आई थिंक दी entertainment industry, this industry, being artists, being actors, it is also somewhat like that. So family से जब आप you chose this path, तब ये resistance था कि यार कैसे? I'll tell you honestly, because मैंने शुरू से ही ना बहुत ऐसा odd सा एक लाइफ जी है। मतलब स्टडीज में भी मैंने एक पर्टिकुलर हमारा PSM होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स PCM, वहाँ से मैंने 12th किया, लेकिन ग्रेजुएशन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल साइंसेज में किया। फिर वो करना मैंने MBA मार्केटिंग सिस्टम्स में किया। सो माय मदर न्यू दैट ये टेढ़ा लग जाए, ये कुछ ना कुछ अलग करता रहेगा और ये कर लेगा, मुझे उनको ये भरोसा था मेरे ऊपर। सो मैंने आस्क्ड हर अबाउट कि यार मुझे मुंबई जाना है, और मैंने बड़ा लॉजिकली दिया कि देखो मैं ट्राई तो करूंगा एक्टिंग में, लेकिन मेरे पास देखो एक MBA की डिग्री है, एक स्पोर्ट्स में डिग्री है, तो कुछ नहीं हुआ तो मैं नौकरी कर लूंगा, वो भी नहीं हुआ तो मैं जिम में नौकरी कर लूंगा जो मैं करता था उस वक्त। तो शी वॉज क्वाइट श्योर अबाउट कि ये कुछ ना कुछ जाके अदा कर ही लेगा जाके वहाँ पर। सो इसलिए मुझे उतना ऐसा रिस्ट्रिक्टेड जवाब नहीं आया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, और टाइम लिमिट दिया गया। शी हैड फुल ट्रस्ट इन मी, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ आने में, एंड शी वाज फुल सपोर्टिव ऑल थ्रू आउट। पैसे चाहिए हो, कुछ चाहिए हो तो शी यूज्ड टू सेंड मी, बड़े कम होते थे बट एटलीस्ट वो सपोर्ट घर से था मुझे। आपने रेडियो में भी ट्राई किया था ना? हाँ।
फिर क्या हुआ? उसने निकाल दिया क्या पहली बार? ऑडिशन में भगा दिया मुझे उन्होंने, नहीं भाग How यार? I don't understand how. पता नहीं मुझे क्या With this voice, how? Maybe I think ऐसा नहीं करूँगा, दोष उनका नहीं है, हो सकता है कि मैं उतना बातूनी नहीं था उस वक्त, शायद वो बहुत जरूरी है। आई थिंक तो आपको ऐसा एक क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्टेनियस स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए जब आप स्ट्रीट स्मार्ट, करेक्ट है ना, बहुत ऐसा स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो मैं शायद वैसा था नहीं, वो फिर लाइफ में धीरे धीरे सीख गया मैं स्पॉन्टेनियस होना। अब शायद मिल जाए नौकरी कहीं ना कहीं। बट रेडियो छोड़ो, आप बाहुबली बन चुके हैं। नहीं, अरे रेडियो बहुत मजेदार चीज है यार, मतलब आई वुड लव टू डू अ शो ऑन रेडियो। ऐसे 1 घंटे का कोई शो आगे टाइम पास करके चले जाओ, मजा भी आएगा, पैसे भी मिलेंगे। प्लीज मैनेजमेंट नोट I'll produce also that, so don't worry. सुना है मैंने सुना ऐसा ऐसा होता है कुछ तो। हाँ, let's do it. हाँ पक्का, बताइए कुछ कंटेंट मैं करूंगा उसके ऊपर। प्रवचन तो मैं दे ही सकता हूँ मतलब। But what about you? Yeah, so बचपन में मैंने एक फिल्म की थी, it's called My Name Is Khan. तो I knew स्टार नहीं सर, एक्टर। शाहरुख, यार तुम शाहरुख सर के साथ काम करते हो, मैं नहीं कर पाया 20 साल में, कभी तूने कर लिया तो बात वो कर रहा है। बट सो बचपन से आई न्यू कि मुझे यही करना है। एंड एक्चुअली अगर इफ नॉट एक्टिंग, आई वांटेड टू जॉइन द आर्मी। सो दिस हैज सेम बीन, है यार, तो मैं उल्टा था, मैं आर्मी नहीं तो फिर हाँ, सो मेरा यही था। तो मॉम डैड लकीली टचवुड हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव कि तू जो करना चाहता है कर। But they've said one thing to me and my older brother कि the family business is not for you. So no matter what you do in life, you're on your own. So going forward till I think 22, 23, they were still not convinced कि मैं कर रहा हूँ. But फिर धीरे धीरे I was in various fields in the industry. मैंने casting में भी काम किया, मैंने theatre में भी काम किया, मैं AD भी बन चुका हूँ. So then धीरे धीरे I think my parents saw कि यार मैं पूरा दिन यही कर रहा हूँ. I'm living in this industry, so then धीरे धीरे they were like नहीं, it's okay, तू जो करना चाहता है कर. So that was my, कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ तो हो ही जाएगा। अगर तू दिन रात यही कर रहा है तो कुछ तो हो ही जाएगा। Coming back to My Name Is Khan, हाँ जी, मैं कभी मिली नहीं हूँ obviously the शाहरुख खान से, but जो लोग हाँ नहीं कभी नहीं, but लोग उनकी आंखों के बारे में जो कहते हैं, क्या वो सच है? I mean, I was a 12-year-old, so back then शाहरुख sir made me feel so comfortable. वो आके कहते थे, you know, how you feeling? Are you feeling tensed? क्या तुम्हें एक बार scene करना है मेरे साथ? And I was just like कि शाहरुख खान is saying, are you tensed? And that only made me feel so comfortable that just being there, he has an aura, of course. So just being there, being around him, it was the best experience I can say. But I think the bigger or the better actor or any professional you are, I think it's because you are so normal in life. Correct. बिल्कुल. Because वो बहुत जरूरी है normal होना यार. लोगों का एक perception कि यार ये बहुत ऐसा होगा या वैसा होगा, बहुत normal है. In fact, I have met couple of times with Shah sir, I think, and एक बार तो मैं फिल्म के सिलसिले में घर पे ही गया था उनके में, and he was so normal with me. मतलब हम लोग पूल खेल रहे हैं, मतलब टाइम पास चल रहा है उधर. And I couldn't believe that, am I playing a pool game with Shah Rukh Khan, the Shah Rukh Khan, and he was so normal with me. I think that's the beauty of a superstar. I think मैंने शाहरुख सर के साथ बास्केटबॉल खेला है. मैं वही बोल रहा हूँ. अभी से अक्षय सर है, फिर वो चलो वॉलीबॉल खेलते हैं, चलो जब भी आज मिल जाते हैं चलो खेलते हैं वॉलीबॉल. So he's so normal, पत्ते खिलवा लो, कुछ टाइम पास, मतलब they're so normal on set. आप इसमें कोच का रोल प्ले कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि you know इस शहर में जब आप अपने ड्रीम्स चेज कर रहे होते हो, कोई एक इंसान तो होता है you know who guides you, who's like your mentor. रहा है कोई ऐसा? यार ऑनेस्टली मेरे हर फेज में लाइफ में कोई ना कोई मुझे गाइड करता है. And I believe that you need a guide in your life. I was very lucky that my father was my first mentor in terms of the kind, जैसे जो मेरे पढ़ाई का सिस्टम भी था ना, he taught me. तो बहुत लोग अभी भी समझते नहीं है. सो सब बच्चे है ना स्कूल से आके पढ़ते हैं, करेक्ट, होमवर्क करते हैं ना शाम को आके, है ना. मैं सुबह उठ के करता था 5:30 बजे होमवर्क. तो उन्होंने बोला कि सुबह बेटा जो पढ़ोगे ना वो याद रहेगा एक तो, एंड देन यू हैव द होल डे टू योरसेल्फ टू डू एनीथिंग. तो मैं स्कूल से आके सब बच्चे मैं खेल रहा होता था पूरे दिन भर, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था कि क्या कर रहा है. सो वहां से लेके क्रिकेट कोचिंग से लेके, आई थिंक ही वाज द फर्स्ट वन. आफ्टर ही पास्ड अवे, देन ऑब्वियसली माय मदर, एंड देन इन एक्टिंग पर से आई वुड से जहाँ मैं एक्टिंग में कूदा, तो वहाँ आई थिंक माय वाइफ, आई थिंक शी इज माय मेंटर. शी टॉट मी ABCD ऑफ एक्टिंग.
मैं तो बहुत गधा था, मतलब बता रहा हूँ ऑनेस्टली। इनफैक्ट वो अभी बोलते हैं, आप कभी उनसे बात करेंगे तो मैं जब फर्स्ट शॉट उनके साथ कर रहा था 2005 में, फर्स्ट सीन जो उनके साथ मैंने दिया, तो उसके बाद वो मेकअप रूम में गई और वो हेयर स्टाइल से बोली, यार ये ऐसा काम करता है, लगता है मुझे ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। सो फ्रॉम देयर आई थिंक शी स्टार्ट मतलब ट्रेनिंग मी स्लो कि कैसे क्या करना है, याद करना है, चाहिए वो है वो। तो आई थिंक शी इज द मेंटोर for me in this field particularly. How sweet Very nice. is that? What about you? So I have had 2 mentors over life. जब मैं कास्टिंग में काम कर रहा था, जो मेरे बॉस थे at the time, Mr. Kavish Sinha, उनकी कास्टिंग कंपनी है On My Payroll. So all the main web series उनकी कास्टिंग करते हैं। मुझे आज तक कास्ट नहीं किया उसने, देख लो। सर अभी बोलता हूँ सर को, रुको मैं बोल चुका, खुद ही बोल चुका उसको, मैं मैं सर को अभी बोलता हूँ। तो सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, द ABCs ऑफ एक्टिंग एंड ऑल्सो द ABCs ऑफ ऑडिशनिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके पहले आई डिडंट नो मच अबाउट एक्टिंग, क्योंकि मैं कभी फिल्म स्कूल गया नहीं, मैंने कभी वर्कशॉप्स किए नहीं, आई डिडंट हैव द लक और द प्रिविलेज टू डू दैट। तो जो भी सीखा मैंने सर से सीखा, ऑडिशंस करा के सीखा। आई यूज्ड टू ऑडिशन एक्टर्स from NSD, from FTI. So I am witnessing वो लोग क्या कर रहे हैं, at the same time I am witnessing जो, I don't want to say this, but जो गंदे actors होते हैं वो क्या कर रहे हैं। So I picked up what to do and what not to do. And sir also taught me a lot about etiquette. But actually what not to do सीखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। कैमरे पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। That was my first mentor. My second mentor was my director जब मैं थिएटर कर रहा था। 2 साल के लिए मैंने थिएटर किया, अभी भी करता हूँ सर के साथ जब टाइम मिले। Mr. Danish Hussain, he's an actor, director, poet, दास्तान गोई, next level talent. तो सर को मैं बस देखता रहता हूँ पूरा दिन, मैं बस सर को देखता हूँ, जो सर करते हैं कहते हैं मैं वही सीख लेता हूँ। मैंने जब चक दे देखी थी, मुझे मन किया था हॉकी खेलने का। फिर मैंने मैरी कॉम जब देखी, मेरा मन किया कि मेरे को बॉक्सिंग करनी है। तो होपफुली अब जब मैं स्लम गोल्फ देखूंगी, मेरा मन करेगा कि मुझे गोल्फ खेलना है। पहली फुर्सत में एक मिनी गोल्फ का एक सेटअप आता है, वो मंगा लीजिए, आप ऑफिस में खेल सकते हैं। और बहुत एडिक्टिव है, आपको बहुत डांट भी पड़ेगी आपके सीनियर से कि आप काम नहीं कर रही हैं, आपसे गोल्फ ही कर रही हैं बैठ के यहाँ पे। So आप क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को? It's already dropped, it's streaming on Amazon Mini TV. So जैसा आप सबने देखा है कि हिंदुस्तान में बहुत सब लोगों को स्पोर्ट्स ड्रामा या स्पोर्ट्स फिल्में या स्पोर्ट्स शोज बहुत पसंद है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमारे यहाँ बहुत कम स्पोर्ट्स बेस्ड ड्रामा या सीरीज या फिल्म्स बनी हैं, और जो बनी है वो हिट हुई हैं। हमें भी यही उम्मीद है कि स्लम गोल्फ के ऊपर बेस्ड है और ये हिट होगा। बहुत खूबसूरत सीरीज़ है, बहुत ह्यूमन है, और ये स्लम गोल्फ अमेज़ॉन मिनी टीवी पे है, जो आपके अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप पे बिल्कुल फ्री है, और ये प्राइम वीडियोस पे भी है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ भी मिनी टीवी का एक स्लॉट ओपन कर सकते हैं और वहाँ स्लम गोल्फ देख सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी है और बहुत एंटरटेनिंग है। मैंने पहला एपिसोड देख लिया है और बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने पहला एपिसोड देख लिया है। करेक्ट। Radio Nasha.